اس گھر کے دروازے ہمیشہ بنی تنین پر کھلے ہوئے ہیں۔ تمہارا ہی غلام تھا، کہا کہ تمہاری طرف سے پیغام لایا ہے کہ تم نے ہماری دعوت کی ہے۔ میں نے دعوت نہیں دی ہے، مجھے نہیں معلوم۔ کیا مطلب؟ مجھے تو اس بن بلائی مہمانی کے آثار کچھ ٹھیک دکھائی نہیں دیتے۔ بد دل مت ہوئیے، شاید کسی نے چاہا ہو کہ مجھے اس دعوت پر مجبور کرے۔ اینف ابن قیس کا وسیع تر دسترخوان ہمیشہ ہی بچھا ہوا ہے، لیکن آج کل کے حالات کسی بھی قسم کے اجتماع اور دعوتوں کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ بہتر ہے واپس لوٹ جائیں۔ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ رک جائیے، میں نے آپ لوگوں کو بلوایا ہے۔ تم نے ہمیں بلایا ہے؟ تم کون ہو؟ بیٹھ جائیے، خاموش ہو جائیے، اطمینان رکھیے۔ تمہیں کس نے کہا کہ لوگوں کو میرے گھر میں بلاؤ؟ میرا آپ سے اور ان لوگوں سے ملنا ضروری تھا، اور حسین ابن علی کا پیغام پہنچانا تھا۔ پیغام حسین؟ حسین ابن علی؟ کیا واقعی تم سفیر حسین ہو؟ یہ اجنبی کیا کہہ رہا ہے؟ بالآخر کسی کو تو اس کی تصدیق کرنی ہوگی۔ اگر واقعی سفیر حسین ہے تو اس کا اجنبی ہونا بھی لازمی ہے۔ حسین ابن علی اس وقت مکہ میں ہیں، مدینے سے نکل چکے ہیں۔ وہ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے۔ اہل کوفہ نے خطوط لکھے اور بلایا، آپ ہماری طرف تشریف لے آئیے، کیونکہ آپ کے سوا ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ اور پے در پہ اس قدر خطوط آئے کہ حسین پر حجت تمام ہو گئی، اور آخر انہوں نے قبول کر لیا کہ عرب کی طرف آ جائیں، اور اب مجھے آپ لوگوں کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ کا تعاون حاصل کر سکوں۔ کوفیوں نے کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے خدا کا شکر ہے وہ خود پرست کینہ پرور ہلاک ہوا جس نے بیت المال کو اپنے اور اپنے خاندان کے آسائش کے لیے استعمال کیا اور لوگوں کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت کی، امت کے نیک افراد کو قتل کیا اور نااہل پست لوگوں کو تخت حکومت پر بٹھایا۔ مزید لکھا ہے، اے فرزند رسول خدا، کوفہ آئیے تاکہ خدا آپ کے دست قدرت کے ذریعے ایک مرتبہ پھر حق کی جانب ہماری رہنمائی کرے۔ ہم کوفیوں کے ہم خیال نہیں ہیں، ہم میں سے اکثر مصری ہیں اور بیشتر یمانی ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ جیسے جیسے ہم زمانے پیغمبر سے دور ہوتے جا رہے ہیں، زمانے جاہلیت کی عادتیں ہم میں مزید بڑھتی جا رہی ہیں۔ بات قبائل اور رنگ و نسل کی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو حسین یزید کی بیعت کر لیتے، کیونکہ وہ دونوں قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں۔ حسین ہمیشہ حق اور عدل کی بات کرتے ہیں۔ اے شخص، ہمیں کیسے پتا چلے کہ تم سفیر حسین ہو سکتا ہے کوئی جاسوس ہو اور ہمارے عقیدے سے باخبر ہونا چاہتے ہو۔ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ہاں اپنی بات کا کوئی ثبوت پیش کرو۔ آپ بزرگوں میں سے کون حسین ابن علی کی مہر کو پہچانتا ہے؟ میں نے تو خود انہیں نہیں دیکھا۔ یہاں کئی ایسے سردار اور بزرگ حضرات موجود ہیں جو حسین کو اس وقت سے جانتے ہیں جبکہ وہ دوش رسول پر بیٹھتے تھے اور مدینے کے گلی کوچوں میں چلتے پھرتے تھے۔ یہ خط انہیں دکھاؤ۔ شاید ہو۔ واہ خدا، مہر حسین ہے، بدست خط مبارک ہمارے مولا حسین کا ہے۔ ہمیں بھی دکھائیے۔ سچ ہے، سچ ہے۔
पढ़ो जो पढ़ना चाहते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ख़त हुसैन फर्जंद अली इब्न अबी तालिब की तरफ से है। अम्मा बाद, खुदावंद मुताल ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बंदों में से मुंतखब किया और करामत नबूवत बख्शी और शर्फ रिसालत अता फरमाई, और फिर उन्हें अपनी जानिब बुला लिया, जबकि मोहम्मद ने खुदा के बंदों को हक की नसीहत की और अपनी रिसालत को बाहसन खूबी अंजाम तक पहुंचाया। और अब हम उनके खानदान वाले, उनके अहले बैत और वारिस हैं, और इसके बावजूद के हर किसी से ज्यादा हम लायक इमामत और खिलाफत थे, इस हक को हमसे छीन लिया गया। हमने तफर्रुक़े से परहेज किया और उम्मत की सलामती को सामने रखते हुए खामोशी इख्तियार की। लेकिन अब जबकि सुन्नत पैगंबर खुदा फरामोश की जा चुकी है और दीन में यके बाद दीगर बिदतें जाहिर हो रही हैं, ऐसे वक्त अपने इस सफीर को इस खत के हमरा तुम्हारी जानिब भेज रहा हूं और तुम्हें किताब खुदा और सुन्नत पैगंबर की दावत देता हूं। अगर मेरी आवाज पर लब्बैक कहोगे तो मैं तुम्हारी फलाह के लिए तुम्हारी रहनुमाई करूंगा। वस्सलाम। इन लोगों से इससे बेहतर भी किसी जवाब की तवक्को रखते हो? लेकिन हुसैन ने उन लोगों से क्या मांगा था? हुसैन ने उनसे उनके घर बार, माल व असबाब और उनकी जिंदगी मांगी। मांगी? बल्कि वो इन्हें सब कुछ देना चाहते हैं। तमाम चीजें नहीं, आजादी, ईमान, हक व इंसाफ और जिन चीजों की तुम बात कर रहे हो, उन लोगों की नजर में इनकी कोई वक़्त नहीं। और तुम्हारा जवाब इस खत के बाबत क्या है? मैं बने तनीन के बगैर क्या कर सकूंगा, लेकिन हुसैन के खत का जवाब दूंगा। हुसैन हक की बात करते हैं, लिहाजा मैं कलाम हक से ही उनको जवाब दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअम्मा बाद फस्बिर इन्ना वअदल्लाहि हक वला यस्तखिफन्नक अल्लज़ीना ला यूक़िनून। बस आप सब्र करें, यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है, और जो लोग यकीन नहीं रखते वो आपको सुबुक ना पाएं। सूरह रूम आयत 60। कुरान बहुत अच्छी तरह हिफ्ज है। हुसैन खुद कुरान नातिक हैं। वो तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ कुरान के लिए क़याम की दावत देते हैं और तुम उन्हें कुरान के जरिए सब्र की तलकीन करते हो। मुसीबत तो दरअसल जंग सिफ़ीन से ही शुरू हो गई थी, जब कुरान नातिक यानी अली से मुंह मोड़ा और कुरान नेज़ों पर हुज्जत करार पाया। दारुल हुकूमत।
तुमने अपने नसीब पर जो गिरा लगाई वो दांतों से भी खुलने वाली नहीं है। तुम भाई होने के नाते उन्हें राजी कर सकते हो। इस वक्त उनके गुस्से को कोई भी ठंडा नहीं कर सकता। मेरा अपना दामन उसी की लपेट में है। कुछ भी हो, उबैदुल्लाह की नफ्स तुम्हारे ही हाथों में है। ज्यादा पुर उम्मीद ना रहो। ये कटा हुआ सर मस्जिद मेंबर से खिताब करता था और लोगों को बगावत पर उकसाता था। ये सर किसका है अहमक? तुम समझते हो कि जिस किसी का भी चाहोगे सर ले आओगे और 1000 दिनार इनाम हासिल कर लोगे? अमीर, उसने खुद दावा किया था वो सुलेमान है। कौन सा सुलेमान? वो जिसने खुद कहा कि सुलेमान है और आखिरी दम तक जंग की, या वो जिसे औरों ने देखा कि हुसैन का नाम ले रहा है और मोरे हुसैन भी रखता है? उन दोनों में से कौन सा सुलेमान? अमीर, वो बिजली की माने ने इस तरह सिपाहियों पर गिर पड़ा कि न गिरफ्तार करने की मोहलत मिली और न ही किसी किस्म की पूछगछ का मौका मिला। उसने जान हथेली पर रखकर हमला किया। उसकी मौत के अलावा कोई चारा न था। तुमने बताया नहीं कि अपना पैगाम पहुंचाए बगैर उसने किस तरह खुद को हलाकत में डाला। क्या यही दलील काफी न थी कि वो सुलेमान नहीं? अमीर, तलवारों की लड़ाई में सोचने समझने का नहीं, बहादुरी के जौहर दिखाने का मौका होता है, वरना जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। उस्मान, अगर तुम मेरे भाई ना होते तो गधे की दुम से बंधवाता, वही तुम्हारा इलाज करता और तुम्हें अंजाम तक पहुंचाता। मालूम तो हो कि तुमने सोचे समझे बगैर दरवाजा क्यों खोला? अमीर उबैदुल्लाह, मुझे माफ कर दे। मेरा मकसद सिर्फ आपकी खिदमत था। सर के लाने का इसरार मैंने इसलिए किया था अमीर को खुश करूं, और बसरा का दरवाजा खोलने का इसरार इसलिए था कि लोगों को खुश करूं, ताकि अमीर की नेकनामी लोगों के नजदीक कायम रहे। इससे पहले कि खानदान की इज्जत बर्बाद हो, इस सर को उठाओ और यहां से दफा हो जाओ। अमीर की जान की कसम, जब तक सुलेमान को ढूंढ न लूं आराम से नहीं बैठूंगा। ऐ जलीलो नाबकार, आखिर कितने लोगों के सरों को उनके तन से जुदा करोगे? अहमियत रखता है? अगर तुम सरे सुलेमान लाओ तो उसके सर के साथ लौटूंगा। नौश जान। शुक्रिया। आपको जहमत देना मकसूद न था। जहमत कैसी? कोई जहमत नहीं। लीजिए नौश जान। बहुत शुक्रिया। नौश फरमाइए। शुरू कीजिए। लो खाओ बहन। हुसैन पर मेरी जान निसार और हर उस शख्स पर जो उनका पैगाम लाए। सुलेमान कहाँ है?
सुबह उनके पास चलेंगे। अभी इस वक्त नहीं जा सकते। शहर मुखबिरों से भरा पड़ा है मेरी बहन, अगर दरवाजे से बाहर कदम रखोगी तो पकड़ी जाओगी। सुलेमान को भी मैंने अपने दोस्तों में से एक के घर छुपाया हुआ है। सुना तुमने? आप ज़ौजे सुलेमान हैं? हाँ, उसी की बीवी है। नहीं, आप बैठिए, मैं इसे संभालता हूँ। बस बस बेटा, बस। ये बच्चों की आदत होती है, थोड़ी देर बाद मुतवज्जा कराता है। मैं भी हूँ। बेचैन ना हो बच्चे। यकीनन ये आपका बच्चा है। हाँ, इसे सुलेमान तक पहुंचाना। उसने अभी तक बच्चे को नहीं देखा है। सुबह तुमसे भी मिल लेगा और अपने बच्चे से मिल लेगा। खुदा तुम्हारा भला करे। पिछले कई रोज से सैर होकर नहीं खाया था। नौशे जान। कितना प्यारा बच्चा है। वाह वाह, माशाल्लाह। तुम नहीं पियोगी? आपकी बीवी कहाँ है? क्या आपके बच्चे नहीं हैं? आपको क्या बताऊं बानो, तकदीर खराब थी। बीवी और बच्चों, मैंने उन दोनों को एक साथ खो दिया। आराम से सो जाइए। यकीनन सफर की थकान अभी खत्म नहीं हुई होगी। शुक्रिया। खुदा करे तुम्हारा बेटा हमें सो लेने दे। तुम चले जाओ, मुझे अपनी बीवी को तलाश करना है। अगर मुझे लिहाज ना होता तो कहता तुम दीवाने हो गए हो। ये सब तुम्हें तलाश कर रहे हैं। सलमा इस शहर में क्या कर रही है? कहीं छुप गई होगी, अपने भाई की हमरा थी। इत्मीनान रखो, गली कूचों में तो नहीं फिर रही होगी। मैं इस वक्त आराम से नहीं बैठ सकता आदम। नहीं, तो ठीक है, फिर सुबह तक सितारे गिनो, लेकिन घर की छत पर। बाखुदा वो मिल जाएगी, लेकिन आधी रात में नहीं। वहाँ कौन है? चलो। मुंह खोलो अहमक, मुंह खोलो। तुम हो या नहीं? मैं नहीं हूँ, बाखुदा मैं नहीं हूँ। मुझे अहमक समझा है? कहते हो कि तुम्हारा नाम सुलेमान है लेकिन मक्के से नहीं आयो। तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। बोलो, एतराफ करो। बाखुदा मैं सुलेमान हूँ, खुरमा फरोश सुलेमान। क्यों यकीन नहीं करते? ए सुलेमान, मेरे चुंगल में ना आना वरना। इनमें से कोई एक यकीनन सुलेमान होगा। मालूम करो और मुझे खबर दो। एतराफ करते हो सुलेमान हो या नहीं? सलमा,
सलमा, सलमा मेरी बहन, उठो। देखो देखो तो कौन आया है। मैंने तुम्हें हर जगह तलाश किया। सुलेमान, सुलेमान बिलाखिर तुम्हें पा लिया। सहरा में, बयाबान में, हर जगह तुम्हें ढूंढा, लेकिन मालूम नहीं कैसे। हवाएं तुम्हारे वजूद की खुशबू मेरे लिए तोहफतन लाई। हत्ता कि आज यहाँ बसरा में भी एक लम्हे को मैंने तुम्हें एक कदम के फासले पर देखा, लेकिन फिर खो दिया। अब तुम्हें हरगिज़ गुम नहीं होने दूंगी। तुम्हारा बेटा। अब हम हमेशा एक साथ रहेंगे सलमा। ताहिर, ताहिर भाई, उठो। ताहिर, सोने दो बहन। वो नहीं है। वो नहीं है? कैसे? लेकिन कहाँ गया? वो अभी अभी गया है। मैंने दरवाजे की आवाज सुनी है। अच्छा, तुम रुको। मैं माजिद इब्ने उबैद हूँ। जो कोई भी हो, आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? गौर से सुनो क्या कह रहा हूँ। फजूल सवालों में मौके को हाथ से जाने ना दो। मैं उसका पता जानता हूँ जिसको तुम लोग ढूंढ रहे हो। हम किसे ढूंढ रहे हैं? सफीर हुसैन इब्ने अली को। वो कहाँ है? मेरी तरफ से उन्हें ये पैगाम पहुँचा दो। वो जाकर क्यों नहीं बता देते? वो लोग भाग जाएंगे अहमक। अगर फरार हो गए तो अमीर तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। उसे जाकर खबर दे दो। जाओ। इस तरफ। सलमा, क्या है? चलो चले बहन, जल्दी करो। क्या सुलेमान आ गया? सलमा वो जासूस है, जासूस। हमें चलना होगा, जल्दी करो, जल्दी से बच्चे को उठाओ। चलो जल्दी, क्यों खड़ी हो? सलमा, यहाँ से, इस तरफ से। रुको रुको, मेरी दस्तार रह गई है। तुम दोनों यहाँ रुको, बाकी मेरे साथ आओ। आ जाओ, आ जाओ। आई आई। चलो जल्दी करो, जल्दी। आई आई।
کہاں ہے وہ؟ یہی سو رہے تھے، باخدا سچ کہہ رہا ہوں. کہاں گئے وہ؟ صحیح کہہ رہا ہوں، یہی سو رہے تھے. جاہل، عقل سے پیدل صبح تک انہیں روک نہیں سکتا تھا. وہ سوئے ہوئے تھے. لے چلو اسے. یہاں سے بھاگے ہیں؟ اے امیر، ادھر بھی کوئی نہیں ہے. میں ہی انہیں پہچانتا ہوں، سلیمان کی بیوی اور اس کے بھائی کو. اے امیر، صرف میں ہی انہیں ڈھونڈ سکتا ہوں. چھوڑ دو اسے، انہیں ڈھونڈو ورنہ صفائی ہستی سے تمہارا نام مٹا دوں گا. چلو. اب سپاہی ہیں، واپس چلو واپس. جتنا زیادہ تلاش کریں گے انعام لینے میں اتنا ہی مزہ آئے گا. صحیح کہا، چلو ڈھونڈے. اچھا تو تم سمجھتے ہو کہ سلیمان ان گلیوں میں سرگردہ ہوگا. ہائے میری قسمت، سلیمان کا کچھ پتہ ہی نہیں. آ جاؤ بہن. یہ کتنے کا ہے؟ 5 دینار میں. کچھ کم کرو. کم نہیں ہوگا. جلدی کرو، ڈھکن بند کرو. یہی تھا بابا. یہ آدمی تو ادھم ہے، بانو ماریا بنت عبد القیس کے باغوں کا رکھوالا. میرے ساتھ آؤ. میری مدد کرو، اسے باہر نکلواؤ.
शायद इस वक्त वो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के जिंदान में है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद किसी को चुपके से नहीं पकड़ता, वो सबकी आंखों के सामने पकड़ता है ताकि खौफ और रास पैदा करे। तुम्हें कैसे पता उसे उठाया गया है? वो मेरे साथ ही था, पीछे मुड़कर देखा तो नहीं था। बानो हुजूर, एक आदमी दरवाजे पर है, यजीद इब्ने मसऊद की जानिब से आया है। यजीद इब्ने मसूद, वही जो बसरा के सरदारों में से है? हाँ, पैगाम हुसैन इब्ने अली के मुखातबीन में से। आप बेहतर है कि छुप जाएं। कहो कि आ जाएं। जी बानो हुजूर। अंदर आ जाइए। बसरे की मोहतरम खातून पर सलाम हो। वालेकुम सलाम। तुम्हारे आका का क्या हाल है? आपको सलाम भेजा है और आपसे अभी इसी वक्त मिलना चाहते हैं। अगर मुझसे मिलने की इतनी ही जल्दी थी तो खुद यहाँ क्यों नहीं आए? मुझे नहीं मालूम। मैं भी आपके साथ चलूंगा। आप कहाँ हैं वो ये ना जाने तो बेहतर है। यहीं रुकिए जब तक कि मैं लौट ना आऊं। अबा खालिद आपके मुंतजिर हैं, तशरीफ लाइए। सलाम अलैकुम अबा खालिद। वालेकुम अस्सलाम बानो मारिया, खुश आमदीद। शाइस्ता तो यही था कि मैं खुद बसरा की बानो के पास आता, लेकिन कुछ ऐसा इत्तेफाक पेश आया कि आपको बुलाना पड़ा। आप बनी तमीम, बनी हंजला और बनी साद के सरदार हैं। मुझे यहाँ आपके पास आने में कोई आड़ नहीं। कल रात जामिया मस्जिद में एक अजनबी आदमी ने दावा किया है कि वो सफीर हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम है और अपने कलाम से इमाम जमात को जलीलो शर्मसार किया है। किसी ने भी उसे नहीं पहचाना, लेकिन मेरे आदमियों ने उसके साथ जिस शख्स को देखा है वो आपका गुलाम है। मेरे गुलामों में से कोई भी कल रात बसरा की जामा मस्जिद में नहीं था। तमाम बसरा जानता है कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बानो से शादी के ख्वाहिशमंद हैं। क्या बानो ने उनकी इस पेशकश को कबूल कर लिया? यजीद इब्ने मसूद जैसे शख्स को ज़ेब देता है कि बिला किसी झिझक और हिरास के जो कुछ उसके दिल में है जबान पर ले आए। आप तो दूसरों से ज्यादा मुझे जानते हैं। मेरा ख्याल है कि वो मुद्दई सफीर हुसैन नहीं बल्कि उबैदुल्लाह का जासूस है। आपका क्या ख्याल है, जो लोगों के दरमियान हुसैन का पैगाम सुना रहा है ताकि लोगों की सोच का अंदाजा लगा सके, और बानो के गुलाम इस काम में उसकी मदद कर रहे हैं? अगर ऐसा हो भी तो अमीर बसरा को इस काम के लिए आखिर मेरे गुलामों की क्या जरूरत? ये बात दो हालतों से खाली नहीं। या तो वो मुद्दई वाकई सफीर हुसैन है, इस सूरत में किस तरह बानो का गुलाम बिला खौफ उसके हमरा था, या फिर झूठा और जासूस है। तो इस सूरत में भी बानो के गुलाम का उससे क्या ताल्लुक? मेरा कौन सा गुलाम उसके साथ था? मेरे साथ आइए। बानो, बानो, खुदा के लिए मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाइए। आदम, आपका गुलाम है ना, या शायद गुलाम है उबैदुल्लाह? वो किसी का गुलाम नहीं, मेरा बागबान था 3 रोज पहले तक। लोग कहते हैं कि ये आदमी हमेशा। अब्बा खालिद,
میں آپ کو ایک سمجھدار اور دانا آدمی سمجھتی ہوں. کس طرح مجھے ابن زیاد کے ساتھ شمار کرتے ہیں؟ بانو، آپ مجھے غلط نہ سمجھیں. خیانت جب زیادہ ہو جائے تو بدگمانی بھی بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ گناہگار بے گناہ دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. مجھے معاف کر دیجیے. مجھے سمجھنے کی کوشش کیجیے. عبید اللہ کا آپ سے پیغام شادی کا معاملہ اس قدر زبان زد عام ہو گیا ہے کہ کیا کہوں. ابا خالد، شک و تردد کو خود سے دور کریں. بہت جلد میرے گھر میں شعر و ادب کی محفل منعقد ہونے والی ہے. میری خواہش ہے میری محفل کو آپ اپنے کلام کے موتیوں سے رونق بخشیے. یہ تیر و تلوار کے جوہر دکھانے کا وقت ہے، نہ کہ خوبصورت سخن و کلام کے گوہر نچھاور کرنے کا. تلواروں کو آپس میں یوں ہی چمکنے اور کڑکنے دیجیے. ہم موت کے بادلوں سے بچ کر شعر و سخن کے سائے میں پناہ ڈھونڈ لیں گے. میرے عزیزوں میں سے ایک عزیز آیا ہے جس کا کلام بڑا ہی فصیح و بلیغ ہے. حیف ہے کہ اس سے ملا نہ جائے. چلو، خدا حافظ ابا خالد. خدا حافظ بانو. خواتین کو ذرا دیکھو. دنیا اگر بحر فتنہ و فساد ہو جائے تو بھی یہ اس کے ساحل پر صدف و گوہر کی جستجو میں سرگرم عمل رہتی ہیں. مچھلی مچھلی، یہ آدمی یہاں کیا کر رہا ہے؟ اسے جانتے ہو؟ وہ جاسوس ہے، ماجد ابن عبید. یقیناً اس لیے آیا ہوگا کہ سفیر حسین ابن علی کا سراغ ہم ماہی گیروں سے حاصل کریں. مچھلی مچھلی. چلو ڈبے، چلو چلے، چلو اس طرف سے جلدی کرو. تم نے ایک مرد اور عورت کو ایک نوزائیدہ کے ہمراہ تو نہیں دیکھا؟ نہیں. تم نے کیا کہا؟ اس کا کیا کروں؟ ابراہیم کو دے دو. ابراہیم.
بانو صاحبہ، یقین کیجئے تمام بصرہ آپ کی تلاش میں چھان مارا. آپ کا بھائی کہاں ہے؟ آپ کے شوہر اس وقت میرے گھر میں آپ کے منتظر ہیں. چلیے چلیے گھر چلیے، اس سے زیادہ انتظار مت کرائیے. میں اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ہوں. آپ کو گھر تک پہنچا کر آپ کے بھائی کو لینے کے لیے واپس آ جاؤں گا. میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی. چلنا پڑے گا. صبح جب اٹھا تو آپ کو نہیں پایا. شاید آپ نے سمجھا کہ میں آپ کی پذیرائی سے تھک گیا ہوں. میرے گھر کو اپنا ہی گھر سمجھیے. جھوٹے میزبان، نامراد، مکار. آرام سے چلتی ہو یا زبردستی؟ اپنے ناپاک ہاتھوں کو دور رکھو. چلو. مکار جاسوس. چھوڑو مجھے. وہ کہاں گیا؟ سپاہیوں سپاہیوں. ارے ادھر آؤ، یہ عورت امیر عبید اللہ ابن زیاد کی دشمن ہے. پکڑو انہیں، پکڑ لو انہیں، پکڑ لو. میری مدد کرو اے مسلمانوں. کیا تم میں کوئی غیور مرد نہیں ہے جو مظلوم عورت کی مدد کرے؟ کوئی بھی امیر عبید اللہ ابن زیاد کے دشمن کی مدد نہیں کرے گا. جتنا چاہے فریاد کر لو. میں سفیر حسین سلیمان کی بیوی اور یہ ان کا بیٹا ہے جو بصرہ آئے ہیں تاکہ پیغام حسین آپ تک پہنچائیں. خدا پسند نہیں کرتا کہ ایک تنہا بے آسرا عورت کو اذیت دو. تم لوگوں نے سنا نہیں؟ یہ سفیر حسین کی بیوی ہے، وہ جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی. سمجھے؟ تمہارا شوہر ہمارے لیے کیا پیغام لایا ہے؟ فضول باتیں مت کرو اے مچھرے. یہ باتیں فضول نہیں ہیں. میں نے پیغام حسین تو نہیں پڑھا، اسے تم لوگ میرے شوہر سلیمان سے سننا جو تمہارے شہر میں ہیں. سلیمان وہ پیغام برسرداری سنائے گا.